تفصیل حدیث وہاں سبق میں ہو چکی ہے. اب یہاں بہت ہو رہا ہے تو مختصر بات چیزیں ذکر کی جائے گی. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے امیر المومنین امام بخاری علیہ رحمہ کو، یعنی ان کی شخصیت کو، اور اسی طریقے سے ان کی کتاب کو یہ مقبولیت کیسے حاصل ہوئی کہ آپ کو اتنی مقبولیت ہے. تو یہ ان کی مقبولیت اسی طریقے سے ان کی کتاب کی مقبولیت کس وجہ سے ہے. تو عام طور پر لوگ جو ہے مقبولیت کے لیے خواب بیان کرتے ہیں، لیکن وہ خواب جو ہے وہ حجت شرعیہ نہیں ہے. خواب سے صرف انسیت حاصل کی جا سکتی ہے. تو اصل آپ کی مقبولیت کے اندر ایک تو ان کے والدین کے تقویٰ کا بڑا دخل ہے کہ آپ کے والد اسماعیل ابن ابراہیم، جنہوں نے حماد ابن زید اور امام مالک سے کسب فیض کیا اور وہ تاجر بھی تھے، تو ان کے مردۃ الوفات کے موقع پر ان کے ایک آدمی احمد ابن حفص، بعضوں نے وہاں نام وحید ابن حفص سے بھی ذکر کیا، یہ ان کے پاس تھے. تو انہوں نے یعنی امیر المومنین کے والد محترم نے کہا ان کو کہ الحمدللہ میں اپنے ترکے میں بہت سارا مال چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن اس میں نہ کوئی ایک درہم بھی حرام کا ہے نہ مشتبہ ہے. تو یہ کلمات زبان پر بولنا تو بڑا آسان ہے، لیکن عملی میدان میں یہ بڑی مشکلات اور سنگین حالات ہوتے ہیں. تو بہرحال امیر المومنین امام بخاری کی گوش پوش کی جو نما ہوئی اور تربیت ہوئی ایسے حلال اور پاکیزہ رزق کی بنا پر ہوئی ہے. تو ایک تو ان کے والد کا یہ تقویٰ، اس لیے کہ ایک لقمہ اگر حرام کا پیٹ میں جاتا ہے تو 40 دن قبول نہیں ہوتی نماز، اور یہاں سارا کا سارا رزق گویا حلال. اس کی بنا پر بھی امام بخاری علیہ رحمہ کو یہ مقبولیت حاصل ہوئی. تو ایک طرف یہ ان کی والدہ کا واقعہ کہ وہ بھی عابدہ زاہدہ برگزیدہ والدہ تھی اور دیندار تھی، اور امام بخاری علیہ رحمہ کا بچپن میں کس عارضے کی بنا پر آنکھوں کی بصارت سلب ہو گئی، چھین گئی. اب یہ ان کے والد صاحب تو چھوٹی عمر میں وفات پا چکے تھے، ساری تعلیم و تربیت کا ذمہ والدہ کے سر پر تھا. تو یہ حالت دیکھ کر وہ کیا ہے بالکل پریشان ہو گئے، اور ظاہر بات ہے کہ اضطراب اور پریشانی کی حالت میں جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے. تو انہوں وہ تڑپ گئی اور آپ کے لیے دعائیں کرتی رہی، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی والدہ کے خواب میں آئے اور کہا کہ باری تعالیٰ نے تیری دعاؤں کو قبول کر لیا اور تیرے اضطراب سے مانگی ہوئی دعا کو قبول کر کے تیرے بچے کی بصارت لوٹ آئی ہے. صبح اٹھ کر دیکھا تو بالکل امام بخاری علیہ رحمہ کی بصارت پہلے سے بھی زیادہ تھی، اور زیادہ ہونے کی دلیل حافظ نے فتح الباری میں ذکر کی، مقدمہ فتح الباری میں، کہ تاریخ کبیر کا مسودہ جو ہے انہوں نے چاند کی بدر کامل 14ویں رات کے روشنی میں لکھا. اتنی بصارت گویا اللہ تعالیٰ نے آپ کی تیز کر دی برگزیدہ اور متقیہ والدہ کی دعا کے برکت سے. تو اصل میں کہنا یہ چاہتا ہوں میں، اور اس لیے اس مسئلے کو اٹھایا، ورنہ پہلے سال کہہ چکا کہ والدین کا تقویٰ اور ان کی نیکی جو ہے اولاد کے حق میں دنیا کے اعتبار سے بھی کیا مفید ہوتی ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی مفید ہوتی ہے، اور دونوں کا افادہ قرآن مجید سے ثابت
आखिरत के एतबार से कुरान ने कहा वल्लज़ीना आमनू वत्तबा ज़ुर्रिय्यतहुम बिईमानिन अल्हक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम, कि वो लोग जो ईमान लाए और उनकी औलाद ने उनकी नक्शो कदम की इत्तिबा की तो हम उनके जुड़ियत को उनके साथ लाहिक कर देंगे। तो आखिरत के एतबार से ये क्या फ़ायदा हुआ? तो वालिदैन का तक़वा आखिरत में मुफीद, दुनिया भी मुफीद। आज हम लोग हालात से परेशान होते हैं कि औलाद कब्जे में नहीं, काबू में नहीं, बहक गए, वालिदैन का सुनते नहीं। लेकिन उसमें अपने सीने में गौर करना चाहिए कि रिस्क हलाल भी तुमने दिया या नहीं, ये है असल मसला। तरबियत तुमने बचपन में की या नहीं। तो वालिदैन की तरबियत उनके रिस्क हलाल के ऊपर नस्लों का गोया मुत्तकी परहेज़गार होना मौकूफ होता है। तो यहाँ तरफ़ैन के एतबार से आपको क्या है वो दौलत नसीब हुई। तो एक तो उस आयत से तो क्या दुनियावी फ़ायदा, उखरवी फ़ायदा, दुनियावी फ़ायदा क्या है? सूरह कहफ में जिक्र कर दिया अबूहुमा सालिहा, अबूहुमा सालिहा। तो वो सातवें पुस्तकें थे, लेकिन उनकी सलाह की बिना पर उनके साथ में औलाद को वो क्या है काम लगा, समझ आया कि नहीं। तो मालूम हुआ कि वालिदैन के तक़वा और खुद मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा कितने परहेज़गार थे, मैं तफसील नहीं करूँगा, वक्त गुजर चुका। पहले साल आपको कह चुका इनके तक़वे के 8 वाक़या जो मुक़द्दमे फ़थुल बारी में 478, 79, 80, 81 तक में क्या है जिक्र कर दिए। तो आप खुद भी क्या है मुत्तकी और परहेज़गार थे। अलबत्ता जो सफ़र का वाक़या जिक्र किया जाता है उसकी कोई असल नहीं है। बाकी जो सही वाक़यात हाफिज़ ने मुक़द्दमे फ़थुल बारी में जिक्र किए वो आपके सामने गुजर चुका। तो ये आपकी मक़बूलियत वालिदैन के और आपके तक़वे की बिना पर बारी ताला ने अमीरुल मोमिनीन के लक़ब से आपको मुलक़ कर दिया। ऐसे बुखारी शरीफ ये भी मकबूल हुई, असौल कुतुब बाद किताबिल्लाह कहा गया। तो उसकी वजह यह है कि आपने इस किताब के लिखने में एहतमाम तारीफ़ भी किया। वो क्या कि हर हदीस के लिखने से पहले आपने गुस्ल किया और फिर 2 रकात सलात इस्तिखारा पढ़ी, फिर जब आपको इत्मीनान हुआ तो उसके बाद वो हदीस लिखी गई। तो इस एहतमाम के साथ और ये जो मुख्तलिफ है उसको हाफिज़ ने कि आपने हरम में क्या है किताब को लिखी, यानी ताज़ीम अब्वाब हरम शरीफ में कायम किए। वरना जाहिर बात है कि मुख्तलिफ जगह पर अस्पाल में हदीस आप जमा करते रहे। 16 साल की उम्र में क्या है बुखारी शरीफ लिख कर तैयार हुई। तो अलग अलग मकामात पर आप सफ़र में जाते और जिन मुहद्दिसीन और मसाइल से हदीस मिलती उसको लिखते जाते। और मुसव्वदा से मुबय्यन ये रोज़े अक़दस यानी मिंबर नबवी और रोज़े अक़दस के दरमियान में बैठकर उसको दोबारा उस मुसव्वदे की क्या है तैयारी की और साफ कर दिया गया। तो इस बिना पर ये वजहुल जमा हाफिज़ ने फ़थुल बारी में जिक्र किया। तो मकबूलियत जो किताब को हुई आपके इस एहतमाम के बिना के ऊपर, और आपने उसके बाद किताब लिख कर अपने मशाइख के सामने रखा। इमाम अहमद इब्न हम्बल, यहया इब्न मईन और अली इब्न मुदैनी, उन हज़रात के सामने रखा। उन्होंने उसको बहुत पसंद किया और 4 अहादीस के बारे में उन्होंने कुछ जिक्र किया, लेकिन उकैली ने कहा कि उसमें भी बुखारी की बात ही वज़नी और सही है, न कि उन हज़रात की। तो गोया मकबूलियत इस तरीके के ऊपर मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा की किताब को भी हासिल हुई और आपकी जात को भी क्या हासिल हुई, तक़वे वालिदैन और खुद के तक़वे की बिना के ऊपर। अब आगे किताब शुरू कर रहे हैं। बाब कौलिल्लाह व नज़रुल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़यामा। इसमें बहुत सी चीज़ें तो है। एक तो किस्त की तरकीब 3 वो आपको बयान कर चुका हूँ, वहाँ लाम के 3 एहतमालात भी बयान कर चुका हूँ, सिर्फ उसको मैं बयान नहीं करूँगा, वक्त कम है। अलबत्ता यहाँ जमा मुतकल्लिम का सिगा लाए नज़रुल मवाज़ीन, मवाज़ीन का सिगा लाए और नज़रुल मवाज़ीन कहा। तो इस बिना के ऊपर जब आदतुल्लाह और सुन्नतुल्लाह जारी है कलाम पाक में, तो जहाँ
آپ باری تعالیٰ کی صفت جلال کا اظہار کرنا ہوتا ہے جمع متکلم کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، اور جہاں شفقت اور رحمت کا ارادہ ہوتا ہے وہاں واحد متکلم، جیسے کہا اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب اس سے پہلے بات تمہیدی چیزیں رہ گئی، اس کو قائم کرنا ہے۔ ایک تو کیا ہے اجازت سند اور اس کی اہمیت۔ سند کی اہمیت کے لیے مقدمہ مسلم میں ذکر کیا عبداللہ ابن مبارک کا قول مقدمے کے 12ویں صفحے پر، ان حاجت اسناد من الدین، کہ یہ سند جو ہے دین کا بڑا ستون ہے۔ اگر سند نہ ہوتی تو جو چاہے اور جو چاہے کہہ سکتا ہے، کہ جو شخص چاہے جو چاہے کہہ سکتا ہے، لیکن جب اس سے سند پوچھی جائے گی تو اس سے اور کا غلط بات کہنے سے خاموش ہو جائے گا۔ تو یہ عبداللہ ابن مبارک کا قول 12ویں صفحے پر مقدمے میں ذکر کیا امام مسلم نے۔ ایسے ابن سیرین کا قول انہوں نے بھی ذکر کیا 11ویں صفحے پر، اور امام ابو اسحاق ترمذی علیہ الرحمہ نے علل صغریٰ جو ترمذی کے ساتھ لگی ہے اس کے 236 صفحے پر ذکر کیا۔ ابن سیرین کے قول کا حاصل یہ ہے کہ اگلے زمانے میں ہم لوگ سند کے بارے میں سوال نہیں کرتے، لیکن جب فتنوں کا ظہور ہوا اور لوگ اپنے باطل عقائد کی ترویج کے لیے روایتیں گڑھنے لگے تب ہم پوچھتے، سوال پوچھتے، اگر وہ اہل ورع متقی حدیث ہوتی تو یا اس کو ہم قبول کرتے، اہل بدعت کی روایت کو رد کر دیتے۔ تو اس سے اہمیت سند معلوم ہوئی کہ سند بہت زیادہ اہم ہے۔ پھر علو سند میں خود امام بخاری کا واقعہ کہ علو سند یہ بھی اس فن میں مطلوب ہے، کہ امام بخاری علیہ الرحمہ کو شیخ عبدالرزاق کی روایت واسطے سے تو ملی تھی اور وہ یمن کے تھے۔ اب یہ چاہا امام بخاری نے کہ بلا واسطہ کہ ان سے میں اس حدیث کو حاصل کروں، اس کے لیے یمن کے سفر کا ارادہ کیا، لیکن لوگوں نے یہ اطلاع دے دی پہلے کہ وہ وفات پا چکے، تو پھر آپ نے ارادہ ملتوی کیا اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو ابھی حیات ہے، لیکن دوبارہ سفر کا موقع دستیاب نہیں ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ ان کے اس طرف سے کہ علو سند کیا مطلوب ہوتی ہے۔ تو اب اجازت سند جو آپ کو میں ذکر کر رہا ہوں، جیسے وعدہ کیا تھا کہ وہاں ہو جائے گی، تو مجھ سے حدیث کے جو ہے 3 ٹکڑے ہیں۔ ایک تو کیا مصنف کتاب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ تو حدیث کے ساتھ لکھا ہوا ہوتا ہے، پھر اسحاق علیہ الرحمہ سے مصنف کتاب تک، یہ ترمذی شریف کے شروع میں لکھا ہے، نسائی کے شروع میں بھی یہ لکھا ہے۔ تو یہ 2 ٹکڑے تو کیا ہے یہاں زبان ہے، لسانی ہے، تحریر میں ہے، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک ٹکڑا جو زبانی ہوتا ہے تو اس میں میرے پاس 3 سند کی اجازتیں ہیں، ایک 5 واسطوں سے، اور وہ یہ کہ مجھ کو اجازت سند حاصل ہوئی سید فخر الدین علیہ الرحمہ سے، اور ان کو اجازت سند حاصل ہوئی شیخ الہند مولانا محمود الحسن علیہ الرحمہ سے، اور ان کو مولانا نانوتوی اور فقیہ النفس مولانا گنگوئی علیہ الرحمہ سے، پھر ان کو اجازت سند حاصل ہوئی شاہ عبد الغنی علیہ الرحمہ سے، اور ان کو شاہ اسحاق سے، اور ان کو اپنے نانا شاہ عبد العزیز علیہ الرحمہ سے۔ تو یہاں سے یہ 5 واسطے آ گئے۔ 4 واسطے کیسے ہوئے کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب حرمین شریف حاضر ہوئے اور وہ شاہ عبد الغنی حیات تھے، اور یہ حضرات وہیں سے آپ کے دونوں مشائخ یعنی مولانا گنگوئی اور مولانا نانوتوی تھی، تو ان کو براہ راست بھی ان کو اجازت سند دی۔ تو گویا اس صورت میں واسطہ ایک کم ہو چکا، اور اس سے بھی زیادہ عالی سند جو ہے 3 واسطوں سے وہ یہ ہے۔ اور اصل میں میرے شیخ جو ہے مولانا نصیر احمد خان صاحب، ان سے میں نے بخاری شریف تو نہیں پڑھی، لیکن مشکات شریف میں نے ان سے مکمل پڑھی تھی، اور موطا امام مالک۔ تو جب مشکات شریف پڑھانے کا وقت آیا میرے پاس غالب، تو اسی وقت خبر ہوتی ہے طالب علم میں تو کوئی شعور ہوتا ہی نہیں۔ اس وقت حضرت کو میں نے خط لکھا کہ میں نے آپ سے مشکات پڑھی ہے اور اجازت سند کی ضرورت ہے۔
تو حضرت نے بہت شفقت فرمائی اور جمی کتب کی گویا مجھے اجازت دے دی، سیاستہ کی بھی اور مشکات شریف تمام کتب کی حضرت نے اجازت فرمائی اور سند بھی کا ہے تحریری طور پر لکھی، اور وہ عربی کتاب جو ہے اسانید عالیہ اس میں وہ سند بھی کا ہے چھپی ہوئی ہے تمام کی تمام اپنے وسائل کی، ان میں یہ بھی ہے۔ تو حضرت تو اس لیے میں نے آپ کو جو سند میں لکھا جمی احادیث تو آئے تھے کہ بخاری میں نے آپ کو جمی احادیث کی اجازت، کیونکہ میرے شیخ نے مجھے جمی احادیث کی اجازت دی ہے، اس لیے وہ احادیث کا لفظ جمع جو میں نے لکھوایا اس کی وجہ یہ ہے صرف بخاری شریف نے بلکہ تمام کتب سیاست اور مشکات اور معتن تمام کے حضرت نے اجازت دی تھی تحریری طور پر، اور حضرت کو اجازت ملی مولانا عبد الرحمن امروہی علیہ الرحمۃ سے، اور ان کو اجازت سند حاصل ہوئی مولانا فضل الرحمن گنج مراد آباد، یہ 3 واسطے ہوئے۔ پھر مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی کو ڈائریکٹ شاہ عبد العزیز سے گویا اجازت سند حاصل ہے، تو یہ تینوں طریق سے میں نے ان کو اجازت دے دی۔ اب اس کے بعد وہ وقت کی تنگی بنا پر چھوڑتا امام مسلم کے اوپر جو اعتراض کیا گیا کہ امام بخاری کے اوپر انہوں نے ردہ قضا کی لیکن وہ چھوڑ دیتا۔ اب یہاں صحیح بخاری کی آخری کتاب کیا ہے، اس میں جو قول ہے، ایک محدث کبیر شیخ مولانا زکریا علیہ الرحمۃ کا قول ہے، اور دوسرا جمہور امت کا یعنی تمام شارحین عام شارحین کا۔ تو حضرت نے جو قول ذکر کیا ابواب التراجم کی جلد ثانی جلد 6 صفحہ 442 کے اوپر، اور لانے نے اس کو ذکر کیا تیسری جلد 423 صفحے پر یعنی حاشیہ لانے۔ تو حضرت کی تحقیق یہ ہے کہ اصل میں آخری کتاب بخاری شریف کی کتاب الاعتصام ہے، اور کتاب رہا کتاب التوحید یہ اس کا تتمہ اور جمیمہ ہے، اور دلیل کے طور پر حضرت نے یہ ذکر کیا کہ اصل امام بخاری علیہ الرحمہ کی عادت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ازداد کو ذکر کرتے ہیں اپنی کتاب میں، اور اس کی میں نے مثالیں آپ کو دے چکا اس پڑھانے کے وقت بھی کہ دیکھو کتاب الایمان کا عنوان قائم کیا، اور ایمان کی جیل کفر اس کے 4 ابواب اسی کتاب الایمان میں قائم کیے۔ 21واں باب باب کفر دون کفر، 22واں باب باب المعصیت من امر جاہلیت یہ بھی کیا ہے بیان کیا، پھر باب جرم دون جرم کو بھی کیا ہے بیان کیا، اور چوتھا باب 24 صفحے پر انعام للمنافق سراسر اور باون، تو یہ ازداد ہے لیکن اس کو ذکر کیا۔ اسے کتاب العلم میں 21واں باب ذکر کیا باب رفع العلم والجہل، رفع العلم و ثبوت الجہل، تو یہ کیا 21واں باب قائم کیا کتاب العلم میں۔ ایسے کتاب الاستسقاء ہے لیکن وہاں قحط سالی کا ترجمہ بھی لائے دوسرا ہے، تو یہ مصنف کی عادت ہے کہ ازداد کو ذکر کرتے ہیں، اس لیے کہ مقولہ مشہور الاشیاء تتبین بازدادها، تو یہاں پر بھی اعتصام میں کیا ہے صحیح کتاب و سنت سے گویا دلیل پکڑنا۔ اب اس کے خلاف کیا ہے فرقہ باطلہ کہ وہ بھی استدلال کرتے ہیں سمجھنے کے لیے، تو لیکن یہ کثیر تھے فرقہ یعنی کتاب التوحید میں تمام کا رد کر دیا جیسا آگے نسخے کے اندر میں ذکر کرتا ہوں۔ تو یہاں اس اعتبار سے کیونکہ یہ کئی فرقے تھے اور ابواب عقائد مختلف تھے تو اس کے لیے کتاب کا عنوان دیا کتاب التوحید۔ تو گویا حضرت کا حاصل یہ ہے کہ کتاب الاعتصام یہ اخیری کتاب ہے اور یہ کتاب التوحید و اعتصام کا تتمہ اور جمیمہ ہے، اور عام سارے اسی کتاب التوحید کو کیا اخیری کتاب مانتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے تیسری بات نسخوں کا اختلاف، تو یہ ابراہیم ابن معقل نصفی اور حماد ابن ثاقب ثنوی نے تو ذکر کیا صرف کتاب التوحید، لیکن اس کے علاوہ ابراہیم بن احمد مستملی نے ذکر کیا کتاب التوحید و رد علی الجہمیہ وغیرہ،
इस तरीके से जिक्र किया। किताबुत तौहीद वरद अल जहमिया व गैरिहिम। और इब्न बत्ताल मालिकी ने भी यही जिक्र किया, लेकिन उन्होंने पलट दिया। पहले कहा कि रद अल जहमिया व गैरिहिम किताबुत तौहीद आखिर में लाए। तो ये 3 नुस्खों का इख्तिलाफ। तो हर सूरत उसमें क्या हुआ, गैरिहिम को जिक्र किया। तो ये गैरिहिम से कौन मुराद? तो उससे मुराद कदरिया है। इसलिए किताबुत तौहीद में जैसा हम अखबार में पढ़ चुके कि जैसे जहमिया और मुर्जिया और दीगर फिरकों का रद्द किया, कदरिया का भी क्या रद्द हुआ है, बल्कि असल है इसमें। तो ये गैरों से कदरिया, तो ये फिरका बातिला के बारे में भी इजमालन सुन लो। एक तो किताब है इब्न जौजी अलैहिर्रहमा की तलबीस इब्लिस, और उसमें ये मौजम 6 फिरके बयान किए और उनमें की हर एक फिरके के साथ 12 यूँ 72 जिक्र किया। 18 सफ़े से 22 सफ़े तक इजमाली अकायद के साथ इब्न जौजी अलैहिर्रहमा ने तलबीस इब्लिस में, जो अरबी में किताब है। इसी तरीके से अल्लामा सयूती ने भी कुछ कहा अपनी किताब सयूती अलैहिर्रहमा ने दुर्र मंसूर में वातसमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ के तहत कुछ कलाम किया है, मुफस्सल नहीं। और अब लगे हाथ दूसरा चीज़ सुन लो, और उसमें वहाँ की गलती का भी जाना है। गुनियतुत तालिबीन, उसमें भी इन फिरकों का और उनके अकायद का जिक्र है, लेकिन यहाँ एक चीज़ तुम्हें जिक्र करना है कि निस्बत जो है इसकी शेख अब्दुल कारी जिलानी की जानिब ये बिल्कुल गलत है, बल्कि उसमें मौजूद अहादीस भी है। तो ये निस्बत जो है वो गलत है, और उसकी गलती को शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने गुनिया का तर्जमा किया फारसी जुबान में। वहाँ पर उन्होंने जिक्र किया कि किसी सूरत में ये इनकी किताब नहीं हो सकती, इसलिए जिसमें मौजूद रिवायत थी। और उस कौल को मौलाना अब्दुल हई तिरंगा महली ने अब रफ़ा व तकमील 379-80 सफ़े के ऊपर जिक्र भी किया। ये मौलाना अब्दुल हई की किताब रफ़ा। इसी तरीके से साहिब निबरास ने भी 295 सफ़े पर जिक्र किया कि निस्बत शेख की जानिब कतअन दुरुस्त नहीं। बहरहाल उसमें भी इन फिरकों का क्या जिक्र है और इजमाली अकायद का भी जिक्र है। ऐसी अल्लामा शहरस्तानी का मिलल जो अरबी में है, उसमें भी इन फिरकों का क्या जिक्र किया। तो कदरिया गैरिहिम से गोया ये कदरिया मुराद लिए गए। अब यहाँ जिक्र ये करता है कि किताबुत तौहीद से इस बात की मुनासबत क्या, नज़र मवाज़ीन की स्थिति क्या। तो उसके समझने के लिए पहले एक तमहीद जरूरी है कि सिफात की 2 किस्में हैं, एक सिफत जात और एक सिफत फ़ैल। तो सिफत जात उस सिफत को कहते हैं कि बारी ताला उन सिफत से तो मुत्तसिफ हो सकता है, लेकिन उसके अज्जा से गोया मुत्तसिफ नहीं हो सकता। जैसे बारी ताला अलीम है तो जाहिल नहीं हो सकता, इसी तरीके से समी है तो गोया बहरा नहीं हो सकता, और बसीर है तो आमा नहीं हो सकता, कादिर है तो आजिज नहीं हो सकता, मुरीद है तो मसलूबुल इरादा नहीं हो सकता। समझे कि नहीं? तो ये 7 सिफातें जाती है जिसको सिफातें सुबूतिया भी कहते हैं कि उसके अज्जा से बारी ताला कादिर है, इस आजिज नहीं है, बारी ताला आलिम है, जाहिल नहीं है, बारी ताला समी है, बहरा नहीं है, देखने वाला अंधा नहीं है। तो ये जो 7 सिफातें हैं, मुरीद, गैर मुरीद, मसलूबुल इरादा नहीं, तो ये सिफातें जाती थी। तो किताबुत तौहीद में तुमने देखा तमाम 58 अब्वाब है, और उसकी खुसूसियत ये है कि देखो 58 के 58 बाब में मुसन्निफ ने आयत से जिक्र किया। हर बाब को कुरान की आयत लाए, जैसे यहाँ नज़रुल मवाज़ीन की आयत कुरान। वजह क्या है कि तौहीदी अकायद से मुताल्लिक़ है, और अकायद के सबूत के लिए दलील कती चाहिए। तो अपने अहादीस की तारीफ इन दलाइल कतिया से पेश करने के लिए 58 के 58 बाब में मुसन्निफ ने क्या है, आयत कुरानी को जिक्र किया। वजह उसकी ये है। तो यहाँ किताबुत तौहीद का इस बात का उससे
ये तो सिफात जाती है। और सिफात फ़िआली क्या है, पहले उसको सुन लो कि बारी ताला उस सिफत से भी मुस्तसिफ हो सकता है और उसकी अजदाद से भी। जैसे कि बारी ताला नाफे है तो मुजीर भी है, मौती है तो मानी भी है, देने वाला है, रोकने वाला भी है, नफ़ा पहुँचाने वाला है, नुकसान पहुँचाने वाला है, जिंदा करने वाला है तो मारने वाला भी है, मुही व मुमीत। तो ये सिफतें ऐसी है कि उससे भी मुत्तसिफ होगा बारी ताला, उसकी जीत से भी। तो गोया ये सिफतें फैली हुई। अब कहना ये चाहते हैं कि चूँकि किताब तौहीद में, और ये तौहीद से मुराद क्या है, तौहीद अहले सुन्नत वल जमात मुराद है। क्यों? मुअतज़िला की तौहीद मुराद नहीं, क्योंकि मुअतज़िला तमाम सिफात का इनकार करते हैं, कहते हैं समीउन बिला समाज बसीरुन बिला बसारत की। तो वो मुअतज़िला का मज़हब बयान नहीं करना है। किताब तौहीद में तौहीद अहले सुन्नत वल जमात और अहले सुन्नत वल जमात की तौहीद में ज़ात और सिफात दोनों को नाम तौहीद है कि बारी ताला की ज़ात को भी मानना और उसकी तमाम सिफात पर ईमान लाना। और तो ये नज़रुल मवाज़ीन, ये चूँकि सिफतें फैली है इसलिए इसको क्या है। और मुहद्दिसुल अस्र अल्लामा अनवर शाह कश्मीर अलैहिर्रहमान ने फ़ैज़ुल बारी में ये जिक्र किया कि इन अब्वाब से ताली और मतलू का फ़र्क बयान करना चाहते हैं कि ताली और उसकी तिलावत ये तो क्या मौजूद होगी, लेकिन कुरान जो मतलू है उसका वजन नहीं है। कि तिलावत क्योंकि ताली का खैर है तो ताली के अमाल का वजन होगा, उसके अमल में से तिलावत उसका भी वजन होगा। लेकिन मतलू जो कुरान गैर मखलूक उसका गोया वजन नहीं होगा। इस बात की जानिब गोया इशारा किया। ये तहक़ीक़ है किसके, मौलाना साद साहब अलैहिर्रहमान की। और अल खैरुल जारी में जो जिक्र किया मौलाना यूसुफ लोहारी की, वो किताब है बुखारी की, वो उन्होंने ये कहा कि असल में यहाँ किताब तौहीद में ये लाना इन अब्वाब को ऐसा है जैसे कि मुतकल्लिमीन अपनी किताब में यानी इलाहियात के अंदर नबूवत को और अवजान वगैरह को जिक्र करते ऐसे ही। लेकिन इस जवाब को शेख यूनुस मुहद्दिस सहारनपुरी अलैहिर्रहमान ने पसंद नहीं किया। बहर सूरत ये गोया मुनासबत हुई कि सिफत फैली है नज़रुल मवाज़ीन, इसलिए किताब तौहीद के तहत उसको गोया लाए। अब ये तो क्या मुनासबत किताब तौहीद के साथ इस बात की क्या हुई वो सुनो कि किताब तौहीद और शुरू में जो है किताब बिल्कुल वही, तो मुनासबत ये हुई कि इब्तिदा जो वही से हुई, इख्तिताम भी वही यानी बारी ताला के सिफत कलाम के ऊपर हुई। ये गोया उसको जिक्र किया। तो ये तो क्या है सारी तमहीदात की। अब असल तो नज़रुल मवाज़ीन की एक बहस आपके सामने जिक्र कर दी। अब यहाँ वो अन्नल आमाल बनी आदम व कौल आमाल, ये कौल जो है जुबान का फैल उसमें दाखिल ही था ना। आमाल जब कहा कि आमाल का वजन होगा तो ये कौल जो है वो जुबान का क्या है, एक फैल है, वो उसमें दाखिल है। फिर भी ये क्यों जिक्र किया, एक लतीफ़ इशारे के लिए कि आमाल है उसमें जुबान का अमल जो है वो भी दाखिल है, लेकिन फिर भी कौल अक़वाल नुस्ख़ों के इख्तिलाफ से कहीं वाहिद जिक्र किया, कहीं जमा। वजह उसकी ये है कि असल में मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान के जो शराइत, उस शराइत पर कोई रिवायत आपको वज़न अमल की नहीं मिली थी, उनकी शराइत पर वज़न अमल की नहीं मिली थी। अलबत्ता कौल की रिवायत यहाँ आपके सामने मौजूद है जो आपने पढ़ी। इसलिए कौल के जरिए लतीफ़ इशारा के जब इस कौल जो जुबान का अमल है जब उसका वजन होगा तो दिगर जवारे का अमाल का भी क्या वजन होगा, इसलिए अमाल के बाद कौल को लाए। अब अमाल को जमा लाए और कौल को वाहिद भी लाए, जमा भी लाए। तो अमाल को जो जमा लाए, क्योंकि मुख्तलिफ जवारे से अमल का सुदूर होता है, जुबान से भी होता है, हाथ से भी क्या है होता है, समझेंगे नहीं।
और इसी तरीके से आँखों से भी होता है। तो ये मुख्तलिफ जवारे से क्या अमल होता है, इस बिना पर आमाल को क्या जमाल है। और कौल का सुदूर सिर्फ जुबान से होता है, उसका मसदर वाहिद है इसलिए, और बाज़ों ने कहा कि अक़वाल कई हैं इसलिए जमा भी लाए। खैर, तो ये बहस यहाँ पर हो चुकी है आपके सामने। अब उसके बाद यहाँ जो जिक्र किया नज़रुल मवाज़ीन, आमाल तोड़े जाएंगे, तो ये मारिफत कैसे होगी? सीख लो। और कुरान ने तो बयान किया कि अम्मामन सकल मवाज़ीन हो, अम्मामन खफ़्फ़त मवाज़ीन हो, लेकिन ये सीख लो और खिफ़्फ़त पहचानी कैसे जाएगी? इसमें क्या है, 3 अक़वाल को क्या जिक्र किया है। एक तो ये जिक्र किया शहाब मामरी ने, तो ये कहा कि दुनिया में जैसे होता है कि जो वजनी होता है वो तराजू झुक जाता है, जो हल्का होता है उड़ जाता है, ये दुनिया कमा फिर दुनिया जिक्र किया। लेकिन बदरुद्दीन जरकशी ने जिक्र किया बेसूद राजे, यानी दुनिया से उल्टा, ये सूद राजे के जिसका वजन ज़्यादा होगा वो ऊपर उठेगा। ये और ये कौल उन्होंने जो जिक्र किया ना साहिब शेख आरिफ इब्न अबी जमरा की बहजतुल नुकूश से इन्होंने क्या जिक्र किया, अल्लामा जरकशी बदरुद्दीन जरकशी अलैहिर्रहमान, और उस पर उन्होंने दलील दी इलैहि यसअदु कलिमुत तय्यिब। इलैहि तो मानव का अमल ऊपर जाता है, तो गोया उन्होंने आमाल के वजन वाले तराजू को ऊपर की जानिब अक्सर दुनिया से क्या जिक्र कर दिया, ये सूद राजे के जरिए। और तीसरा कौल ये है कि हसना, जिसको कस्तलानी ने क्या जिक्र किया 10वीं जिल्द के अंदर, वो ये जिक्र किया कि नूर और जुल्मत के एतबार से कि जो आमाल नेक ज़्यादा है वहाँ नूर जारी होगा, और उसके अंदर खिफ़्फ़त में जुल्मत नूर के एतबार से क्या है, उसका जुहूर होगा। अब इसके बाद मुस्लिम की रिवायत से भी इश्काल यहाँ होता है। इमाम मुस्लिम ने किताब तहारत में आपने पहली रिवायत जो पढ़ी उसमें क्या जिक्र किया, अत्तुहुर निस्फुल ईमान, उसके बाद जिक्र किया अल्हम्दुलिल्लाह तमलउल मीज़ान वल्हम्दुलिल्लाह व सुब्हानहु तमलान मीज़ान वमा फिल अर्ज़ि वस्समा, अल्हम्दुलिल्लाह एक तराजू को बढ़ देगा, और अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह 2 तराजू को बढ़ देगा, और ये कि ज़मीन आसमान ही को क्या बढ़ देगा, ये भी जिक्र किया। तो इसका हुआ ना कि जब सिर्फ ये 2 कलमे ही दोनों तराजू को बढ़ जाएंगे तो दीगर अमाल जो है वो कहाँ रखे जाएंगे? बात सवाल समझे? तो अब उसका जवाब दिया इमाम नबी अलैहिर्रहमान ने भी जवाब दिया, और नबी यही असल सारे बुखारी के, लेकिन उनकी उम्र ने वफा नहीं की, ईमान तक उनकी शराब हुई उसके बाद, लेकिन उन तमाम की तलाक़ी नबी ने सरे मुस्लिम में क्या कर दी गई है। बुखारी का हल भी नौवीं से होगा, इसलिए कि इब्न हजर जो है, किरमानी जो है और ऐनी है, वो उन्हीं से कहा अक़वाल को लेते हैं, तो उन अक़वाल को फिर तुम मुस्लिम की नबी में देखो तो मिल जाएगा आपको। तो इमाम मुस्लिम की रिवायत से सवाल पैदा हुआ, तो जवाब दिया कि ये आमाल जो वजन किए जाएंगे वो नूर की शक्ल में, आप देखो महसूस कि एक लालटेन जलती है जब भी रोशनी होती है, दूसरी होती है उसमें कोई मुजाहमत नहीं होती, बल्कि रोशनी बढ़ जाती है लेकिन कोई मुजाहमत नहीं होती। एक लालटेन से भी क्या है जुल्मत दूर होती है, दूसरी तीसरी जलाओ रोशनी में इजाफा होगा, लेकिन उनमें आपस में कोई तसादुम और तजाहुम नहीं होता। ऐसे वहाँ कोई तजाहुम और तजाहुम ये वाक़या नहीं होगा। तो ये इस हेडिंग के ऊपर क्या है जिक्र कर दिया। इसके बाद वजन के बारे में मीज़ान, क्योंकि मवाज़ीन जिक्र जमा का सेगा लाए, तो उसमें कई मीज़ान होंगे या कि मीज़ान वाहिद होगा। इमाम फखरुद्दीन राज़ी साहिब तफसीर कबीर, उन्होंने अपनी तफसीर कबीर में जो जिक्र किया, उन्होंने ये कहा इमाम राज़ी अलैहिर्रहमान ने कि मवाज़ीन कई होंगे आमाल और अस्कात के एतबार से अलग अलग। तो ज़ाहिरी मवाज़ीन पर क्या इस्तिदलाल किया, लेकिन
ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ، ایمان الدین ابن کثیر اور دیگر محدثین نے کہا کہ میزان ایک ہی ہوگا، میزان ایک ہی ہوگا۔ اب جو موازین لائے تھے جمع کیوں لائے جب ایک میزان تھا؟ تو یا تو یہ اشخاص کے اعتبار سے عمل تولا تو ایک ہی تھا، لیکن مختلف اشخاص کے تولے جائیں گے نا، تو مستقل رجال سے کیا ہے اعمال تولے جائیں گے، یا تو اس اعتبار سے، یا اعمال مختلف ہوں گے اس اعتبار سے کیا لائے۔ اور ابن حجر نے یہ بھی کہا کہ یا تو یہ اس طریقے سے لائے تعظیم اور تفخیم کے طور پر، جیسے کہ قرآن نے ذکر کیا وہاں پر کہ کذب قوم نوح والمرسلین، تو نوح علیہ السلام کی کیا صرف انہوں نے تکلیف، لیکن مرسلین کو بھی لائے، تو تفخیم اور تعظیم بیان کرنے کے لیے گویا جمع کا صیغہ لائے، تو گویا جمہور کے نزدیک میزان ایک ہی ہوگا۔ تو یہ وحدت کا قول ابن کثیر کا بھی ہے، اور اسی طریقے سے حافظ ابن حجر نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے، اور بخاری کی رائے بھی یہی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ میزان میں کیا تولا جائے، میزان میں کیا تولا جائے، یہ ہے مسئلہ۔ تو میزان میں تولنے میں تین اقوال ہیں۔ مشہور قول تو یہ ہے کہ اعمال ہی تولے جائیں گے، کہ اعمال ہی تولے جائیں گے، اور وہ قول کس کا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اسے امام بخاری، ابن حجر اسقلانی اور جوزجانی انہوں نے کہا کہ اعمال تولے جائیں گے، اور صحائف اعمال کا قول ابن عمر، اسی طریقے سے امام الحرمین ابو العباس ابو عبداللہ قرطبی، ان حضرات کا قول یہ ہے کہ گویا صحائف اعمال تولے جائیں گے۔ اور تیسرا قول جو امام بغوی علیہ رحمہ کا ہے وہ یہ ہے کہ صاحب اعمال اصحاب اعمال تولے جائیں گے۔ یہ امام بغوی کا قول ہے کہ اصحاب اعمال تولے جائیں گے۔ اب پہلا صاحب اعمال انہوں نے اس حدیث بطاقہ سے استدلال کیا جس کو ترمذی، ابن حبان وغیرہ نے ذکر کیا کہ وہ ادھر ترازو میں سارے اعمال معاشی کی کیا ہے، دفتر کے دفتر ہوں گے، پھر ایک بال چالا کریں گے تو جرم نہیں کیا جائے گا، پھر ایک بطاقہ لایا جائے کاغذ کا ٹکڑا اور وہ وزنی ہو جائے گا اور وہ نیچے ہو جائے گا۔ تو حدیث بطاقہ سے انہوں نے استدلال کیا کہ صحائف اعمال تولے جائیں، اور جن لوگوں نے اصحاب اعمال سے استدلال کیا انہوں نے اس آیت سے استدلال کیا جس کو امام بخاری علیہ رحمہ نے کتاب التفسیر سورہ کہف سے چھٹا باب ہے اس میں کیا ہے اس کو ذکر کیا، اور امام مسلم نے اس روایت کو ذکر کیا کتاب المنافقین باب صفت یوم القیامہ، تو اس میں کیا ہے امام مسلم نے لکھا اس روایت کو کیا ذکر کیا، اور بخاری علیہ رحمہ نے بھی سورہ کہف میں وہ روایت ذاتی یوم القیامہ اور رجل عظیم الشہیم کہ موٹا تازہ آدمی قیامت کے دن کیا لایا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کیا اس کا وزن نہیں ہوگا، تو معلوم کا وزن اشخاص کا ہوگا۔ ایک تو یہ روایت ذکر کی، دوسری روایت جو کہ ابو داؤد وغیرہ نے ذکر کی عبداللہ نے مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ایک دفعہ وہ مسواک لینے کے لیے کسی درخت پر چڑھے، ہوا نے ان کی پنڈلی کھول گئے تو دیگر صحابہ ذرا ہنسنے لگے، اس پر حضور نے کہا کہ یہ تم ہنستے ہو، عبداللہ بن مسعود کا وزن قیامت کے دن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا، احد پہاڑ سے بھی کیا ہے زیادہ ہوگا ان کا وزن۔ تو ان روایتوں سے استدلال کیا انہوں نے کہ اشخاص کا وزن ہوگا، اشخاص اعمال کے جو ذات ہے اشخاص ان کا وزن ہوگا، لیکن صحیح اور راجح قول جو جمہور کے نزدیک وہ پہلا ہے کہ اعمال ہی کا ہوگا۔ ایک تو یہ روایت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے کہ خبیبتان ثقیلتان ثقیلتان فی المیزان، کہ یہ جو کلمے ہیں انہی کو عمل ہے، اسی کو کہا کہ ثقیلتان فی المیزان۔ تو ایک تو یہ روایت ہے۔ دوسری روایت
जो जिक्र की गई है, और अबू दर्दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, और इसको हाफिज ने जिक्र भी की फतहुल बारी जिल्दत 13 के ऊपर। वो ये असल में क़यामत के दिन हुस्न खुल्क का पल्ला जो है सब अमाल पर भारी हो जाएगा कि अच्छे अखलाक वाला जो अमल है उसके तराजू तमाम दीगर अमाल पर क्या है भारी हो जाएंगे, तो मालूम है कि अमल तोड़ा जाएगा। ऐसी दूसरी रिवायत हज़रत जाबिर से है, इसी को भी हाफिज ने कहा जिक्र किया 13 जिल्द फतहुल बारी के अंदर, और वो ये जिक्र की कि असल में एक यूजनुल हसनात व सय्यात, कि एक तराजू में हसनात रखे जाएंगे, एक तराजू में सय्यात रखे जाएंगे। तो इस रिवायत को भी हाफिज ने जिक्र किया। तो गोया 3 दलाइल से जिक्र किया कि आमाल का वजन होगा। अब 12,000 ने तो जमा की कोशिश की, जैसे इमामुद्दीन इब्न कसीर ने तो ये कहा कि ये मुख्तलिफ बाद जगह के ऊपर आमाल तोड़े जाएंगे, बाद मवाक़ी पर सहायक आमाल तोड़े जाएंगे और बाद जगह पर अस्ताद तोड़े जाएंगे। लेकिन हाफिज इब्न हज़र तरजीब की सूरत चाहती कि ये कौल आमाल का तोड़ा जाना वाजिब है और राजे, और उनके जवाब दिया कि ये अहादीस कसीरा है, वहाँ से सही के रिवायत और उसकी ताज़वी की कि आप तोड़े तो आमाल जाएंगे लेकिन सही के भी शक्ल में तोड़े जाएंगे। और रहा वो रिवायत है, और वो आय कि क़यामत के दिन जो है काफिर का वजन वाली ताला के नज़दीक मत्सर की फड़ के बराबर की नहीं। और अब्दुल्लाह तो वहाँ मुराद क्या है, मजाजी माने यानी बेकदर है, जब बारी ताला के नज़दीक मुश्रिक और काफिर की कोई कदर कीमत नहीं होगी एक मच्छर के फड़ के बराबर। और अब्दुल्लाह बिन मसूद की रिवायत में उनकी कदर कीमत को बयान किया कि अल्लाह के रास्ते में जो उन्होंने जिहाद की जो मशक्क़त उठाई उसकी वजह से उनके आमाल में वो वज़न पैदा हुआ कि ओहद पहाड़ भी उसके सामने खफीफ नज़र आएगा। तो ये उन लोगों के जवाब देकर कहा कि ये रिवायत कसीर है और आमाल का वजन होगा। अब जाहिर बात है आमाल का वजन होगा, उस पर इश्काल वाजिब होगा ना। आमाल तो आराज में है, लायक का जमाने ये आराज है, 2 जमाने बाकी नहीं रह सकते, उसका वजन कैसे होगा। तो एक तो जवाब क्या है, मुतकद्दिमीन कदीम फलसफे के एतबार से जवाब दिया जाएगा एक जदीद। तो इन लोगों के लिए तो ये इब्न अब्बास की रिवायत कि ये आमाल को क़यामत के दिन शक्ल दी जाएगी, किसकी, अज़साम की, तजस्सद कि नेक आमाल है हुस्न सूरत के साथ होंगे और बुरे जो आमाल है वह सूरत के साथ क्या है वाक़े होंगे। और उस पर मालिक इब्न दीनार का किस्सा भी क्या है जिक्र किया जाता है कि मालिक इब्न दीनार ने ख्वाब में देखा कि मैदान मैसर कायम है और एक देखा कि एक अजदहा बड़ा उनके पीछे दौड़ रहा है और वो मदद मांग रहे हैं लोगों की। तो एक बूढ़ा सा नखीर बूढ़ा नजर आया आदमी खूबसूरत, उसको देखा से उन्होंने कहा कि अजदहा बड़ा है, मेरे बस का रोग नहीं है, तुम आगे जाओ, पहाड़ में अगर तुम्हारी कोई अमानत रखी है तो वो तुम्हारी मदद करेगी। चुनांचे वहाँ जाकर आवाज़ दी तो वहाँ से औलाद नाज जो छोटे छोटे बच्चे गुजर जाते हैं ना कबल बड़ू, वो निकले और उन्होंने अजदहा को मार भगाया। और उनमें इस मालिक इब्न दीनार की एक बच्ची भी थी जो बचपन में वफात पा चुकी थी, वो वहाँ से कूद के आपके गोद में बैठ गई और दाढ़ी पकड़ के कहने लगी कि आपने जो अजदहा देखा अब्बा ये आपके बुरे अमाल से पाकिट वाले, और आपने जो खूबसूरत देखा वो आपका नेक अमाल, लेकिन वो कमज़ोर थे इसलिए वो इसका मुकाबला नहीं कर सके। हासिल इतना ही कहना है कि गोया अमाल को क़यामत के दिन अजसाम की शक्ल इख्तियार की जाएगी। इब्न अब्बास से मरवी है जिसको हाफिज ने भी फतहुल बारी में क्या है जिक्र किया 13 जिल्द की शरह करते हुए। ये तो मुतकद्दिमीन के एतबार से जिन्होंने आज तो कोई सवाल ही पैदा नहीं, साइंस ने की तरक्की कर दी और देखो साइंस से मरूफ होने की ज़रूरत नहीं है। जितने इस्लाम के अकायद हैं जिनका ये करीम फलसफी इनकार करते थे, साइंस खुद उनको साबित करती चल जाती है। इनमें का ये भी कि कह रहे थे कोई अमाल गाड़ी का वजन होगा, उसको कोई इनकार करके आराज है वजन नहीं होगा।
आज तो क्या है, बुखार भी क्या है तोड़ा जाता है, हवा गर्मी सर्दी कितनी है वो भी क्या है नापी जाती है। मालूम हुआ कि आवाज को भी क्या है कैद में लाया जा सकता है, लिहाजा ये इस्काल न किया जाए। अब सवाल ये है कि आमाल से कौन लोग मुस्तस्ना होंगे, तो उसमें हाफिज ने तो क्या 3 जिक्र किए, लेकिन चौथा जो है साहिब जुमर जो सुयूती का क्या है मौसी जलालन का उसने जिक्र किया। तो इन्होंने तो एक कहा कि एक तो वो काफी जिसके पास कुफ्र और मासियत है और कोई अमल नहीं है उसका वजन नहीं होगा। फिर वो मोमिन कि जिसके हसनात है लेकिन एक भी सैया एक पार्टी को भी नहीं लिया, तो उन मोमिनीन को भी क्या है अमाल का वजन नहीं होगा। और तीसरे वो 70 जो बगैर हिसाब किताब के दाखिल किए जाएंगे, जिनकी तीन सिफत आपने पढ़ी है क्या कि वो अल्लाह ताला जब अल्लाह तवक्कुल करेंगे और अल्लाह के पास नहीं जाएंगे, ये तो वो लोग जो 70 है वो भी बिला हिसाब किताब के, और ये 3 हो चुके। अब चौथे जो साहिब जुमल ने जिक्र किया अम्बिया अलैहिस्सलाम कि उनके अमाल का भी क्या है वजन नहीं होगा। तो अम्बिया कुफ्फार और वो मोमिन जिसका कोई सैया न हो हसनात और वो 70 वो बिला हिसाब किताब पे चले जाएंगे, उनका भी क्या है वजन नहीं होगा। अब उसके बाद जो जिक्र किया काला मुजाहिद, तो यहाँ मोतज़िला ने तो क्या है वजन से अदल को मुराद लिया, मुजाहिद की भी क्या है करार लिया है, लेकिन जमहूर के नज़दीक वजन ही होगा बिल ही जैसे के बयान कर चुके कि वजन तोड़ा जाएगा। सिर्फ बोलने और तोड़ने वाले में 2 कौल है, हजरत जिब्राइल या तो क्या है वो डंडी पकड़ेंगे, बाद में कहा कि हजरत मीकाईल पकड़ेंगे, वो कस्तलानी ने जिक्र किया यहाँ। इसीलिए आप सुनो अल किस्तास अल जुमिया, तो यहाँ एक बहस और कुछ कौल से हुई कि कुरान किस्तास ये क्या है रूमी जमा का लफ्ज है और किस्त ये रूमी जमात का, तो गैर अरबी का कुरान में है कि नहीं उसमें 2 जमात हो चुकी है। बाज़ों ने कहा कि रूमी भी और इसी तरह हफ्सी कई कलिमात आते हैं, और इमाम शाफी अलैहिर्रहमा और इब्न जरीर तिबरी ने इनकार किया कि कुरान में कोई गैर अरबी लफ्ज ने उन्होंने इस्तेमाल किया कुरान अरबिया कि हमने अरबी कुरान को नाजिल किया, तो उसलिए आयत से क्या इस्तेमाल किया। लेकिन जमहूर के नज़दीक क्या है, जैसे ताजुद्दीन सबकी, अल्लामा सयूती, इब्न कसीर, इन्होंने कहा कि यहाँ अरबी जुबान कुरान मजीद में गैर अरबी अल्फाज भी आए। फिर उसकी तफ्सीर अल्लामा ताजुद्दीन सबकी अलैहिर्रहमान ने 27 कलिमात तलाश करके बतलाया कि तमाम गैर अरबी से मौलफ कर दिए गए। इब्न हजर अस्कलानी ने उस पर 24 का इजाफा किया, तो 59 हुए। उसके बाद अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमान ने इत्कान फी उलूमिल कुरान में जिक्र किया और उस पर क्या है 71 का इजाफा करके उन्होंने इत्कान फी उलूमिल कुरान जिल्द सानी 472 पर कुल गोया 120 उन्होंने क्या जिक्र किया। तो ये वो 27, 24 और बकिया इन्होंने जिक्र किए, यानी अल्लामा सयूती अलैहिर्रहमान इत्कान फी उलूमिल कुरान में, तो गोया गैर अरबी से मौलफ किए गए 120 कलिमात इन हजरात ने क्या तजवीज़ किया। अब उसके बाद इस्माइलिया का एक एतराज़ है कि यहाँ मुसन्निफ कहते हैं कि किस्त मस्दरुल मुक़सिद, तो किस्त मुजर्रद का सिगा है और मुक़सिद इसमें फ़ाइल बाबी फ़ाल का है, तो ये कैसे हुआ? यानी किस्त को कहना कि मुक़सिद का मस्दर है, मुक़सिद जो इसमें फ़ाइल है उसका मस्दर तो इफ़ाल आएगा, यानी एक साथ आएगा, किस्त नहीं आ सकता। तो अल्लामा शमसुद्दीन किरमानी अलैहिर्रहमान ने जिल्द 25 249 के ऊपर जवाब ये दिया कि मस्दरुल मस्दर, कि बेशक मुक़सिद का मस्दर इकसात है, लेकिन इकसात का मस्दर क्या है? किस्त है। तो मस्दरुल मस्दर जिसको जवाइद भी कहते हैं, मस्दरुल जवाइद, तो ये उन्होंने किरमानी ने क्या इसका जवाब दिया। अब इसके बाद
यहाँ जो जिक्र किया कि ये किस्त जो है काफ के कसरे के साथ भी पढ़ा गया और काफ के फतहे के साथ, तो मुक्सिद ये दोनों से है। किस्त जब पढ़ा जाए कसरे के साथ तो उसका माना क्या है, अदल इंसाफ के होते हैं, और जब फतह के साथ पढ़ा जाए तो जुल्म, जैसे खुद मुसन्निफ भी कह रहा है ना, अम्मल कासिद फौत जाए, काफ का जब फतह पढ़ा जाएगा तो जाहिर और जालिम के माने में होगा, और जब कसरा पढ़ा जाएगा तो उस वर्ण अदल इंसाफ के माना। तो अब मुक्सिद में दोनों माना का क्या लिहाज किया गया, क्या कि ये जब मुक्सिद में हमजे शहरूरत के लिए हाल में खवास होते हैं ना, अफ़ाल जो मजीद है उनके खवास है। खवास में भी किताब फारसी में तो हमने पढ़ी है, पनगन उसमें तीसरे बाब में खवास अब्वाब लिखे गए हैं, मौलाना से ही पढ़ी है कहते हैं। तो पनगन में क्या है, वो खवास अब्वाब को क्या है जिक्र करते हैं, समझना है। तो हमजा शहरूरत के लिए एक तो होता है, एक हमजा शहरूरत के लिए होता है, और दूसरा तो जब ये कासिद से काफ के कसरे के साथ किस्त से माना जाए, यानी वो सारा अदल इंसाफ वाला हो गया। फिर दूसरा खासा हमजे इफ़ाल का क्या है, सल्ब माखत, तो जब अदल इंसाफ को गोया सल्ब किया तो क्या जुल्म आ जाएगा। तो गोया चाहे फसला पढ़ा जाए फतह पढ़ा जाए, दोनों के एतबार से मुद्दा क्या है साबित है। और उसमें इब्न कत्ता का गोया रद्द हो चुका, जिन्होंने यह कहा कि दोनों मुश्तरक है, लेकिन कुरान से उनकी तायद नहीं होती है, क्योंकि कुरान में अम्बल कासितुन फ़कानुल जहन्नम ख़तबा या कासितुन जिक्र किया, और वहाँ इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, तो मालूम हुआ कि ये दोनों का मुश्तरक मानना ये इब्न कत्ता का किसी सूरत में भी क्या सही नहीं है। अब इब्न हज्जाज का जो किस्सा है मैं छोड़ लेता हूँ वक्त के तंगी की बिना के ऊपर, जिसको अल्लामा कश्तलानी ने जिक्र किया, जिसने 10 सफ़ा 422 पर जो शौकीन वो वहाँ मुताला कर लें, 482 सफ़े जिल्द 10 के ऊपर लिखा है। खैर अब आगे हदसना अहमद इब्न इसहाक़, तो देखो यहाँ रिवायत तो क्या है, आपने तीनों पढ़ी है। एक तो क्या किताबुल दावात में पढ़ी 1864 सफ़े के ऊपर 19 बाब के ऊपर कुतैबा में सही। ज़ुहैर इब्न हर्ब की रिवायत किताबुल ऐमान में पढ़ी 1794 सफ़े पर 65 बाब पर। अलबत्ता मतन उनका अलग अलग है, वहाँ पर क्या जिक्र किया गया है, खफी पतान लिसान शकीलतान फिल मीज़ान हबीबतान इलर रहमान, यूँ वहाँ दोनों जगह पर जिक्र किया, आप पढ़ चुके। और यहाँ ये तो अब यहाँ सवाल यह पैदा होता है कि इस रिवायत को मुसन्निफ ने अपने 3 शयूख से रिवायत किया है इसी किताब में, अहमद इब्न इसहाक़ और कुतैबा में सईद और ज़ुहैर इब्न हर्ब। तो अहमद इब्न इसहाक़ ही की रिवायत को यहाँ क्यों लाए, तो असल में इसलिए कि पहली रिवायत को गौर करो वो हुमैदी की, हुमैदी के अब उनके शेख जो हुमैदी है उनकी रिवायत है, तो वहाँ मादे हमद है, यहाँ पर भी मादे हमद है। इसे लतीफ़ इशारा कर रहा है लहुल हमद फिर उला वल आखिरा, जो सूरह क़िसस में सही आयत को पढ़ लेना, लहुल हमद फिर उला वल आखिरा, उसकी जानिब गया लतीफ़ इशारा कर दिया मुसन्निफ ने, इसलिए उसको लाया। अब आगे जो जिक्र किया मोहम्मद इब्न फुज़ैल, तो यहाँ पर एक सवाल पैदा हुआ कि ये मोहम्मद इब्न फुज़ैल तो सैयद के साथ मुत्तसिफ थे, रवाफिज़ थे, उनकी रिवायत को कैसे लाया मुसन्निफ, ये सवाल पैदा हुआ। तो जवाब दिया कि ये 2 किस्मों पर होता है फिस्क, एक तो वो फिस्क जो मुस्तलज़िम कुफ्र है, और एक वो फिस्क जो मुस्तलज़िम कुफ्र नहीं है। तो ये तो मुत्तफ़क़ अलैह मसला है कि वो रावी जिसका फिस्क मुस्तलज़िम कुफ्र है उसकी रिवायत किसी के नज़दीक क्या काबिल कबूल नहीं होती, लेकिन इनका जो ये था शरीयत वो मुस्तलज़िम कुफ्र नहीं थी, बल्कि वो तफ़ज़ील अली करते थे तफ़ज़ील उस्मान पर, तो ये कोई मुस्तलज़िम कुफ्र नहीं है। और
जो रावी गोया मुस्तलजी में फिस्क होता है, लेकिन फिस्क कुफ्र तक पहुंचाने वाला नहीं होता है, बल्कि मासी के साथ गैर कुफ्र के साथ, तो उसकी रिवायत कबूल करने में 3 अक़वाल है। एक तो इमाम मालिक अलैहिर्रहमा, अय्यूब सख्तियानी जो अबू दाऊद के अब्वाबुल इस्तिआज़ा में कसरत से उनकी रिवायत है, अय्यूब सख्तियानी। इसी तरीके से मोहम्मद इब्न सीरीन, ये तीनों हज़रात इस बात की जानी गई कि मुतलकन किसी भी, चाहे मुस्तदरिक कुफ्र हो या मुस्तदरिक के गैर कुफ्र, रिवायत फासिक के मोतबर नहीं होगी। और उसके मुकाबले में दीगर हज़रात ने कहा कि मुतलकन उस वक्त कबूल होगी मुतलकन, लेकिन एतदाल के बाद हाफिज इब्न हजर ने क्या जिक्र की, यहाँ पर भी जिक्र की, नुक़बा में भी जो उसूल हदीस में उसकी इजाज़त देते हैं, उसमें भी उन्होंने क्या जिक्र किया कि उस फांसी की बिदाती की रिवायत मोतबर नहीं होगी जो अपनी फिस्क और अपनी बिदात की तरवीज़ करता है, यानी अपने अकायद की जो तरवीज़ करता है, ऐसे फांसी की रिवायत तो क्या मोतबर नहीं होगी। तो ये, और फिर हाफिज ने ये भी कहा कि हाँ 3 अक़वाल में से ये कौल ज़्यादा आदल है कि वो फांसी जो गैर मुस्तजी में कुफ्र है, अगर वो अपने फिस्क और बिदात की तरवीज़ नहीं करता तो उसकी रिवायत क्या है, काबिल कबूल हो। अब उसके बाद जो जिक्र किया कि यहाँ हदीस में जो जिक्र किया, कलेमतान हबीबतान इलर रहमान, यहाँ रहमान यानी सवाल ये पैदा होता है कि बारी ताला की अस्माए हुस्ना तो कई, अस्माए हुस्ना तो कई, रहमान को कौन सा सुरखा का फल लगा कि उन 99 से उसी को जिक्र किया। एक तो जवाब इन असलाफ ने दिया जुबुल मुतकद्दिमीन ने, और वो जवाब असल में एक तो जिक्र किया अल्लामा शमसुद्दीन किरमानी अलैहिर्रहमान ने जिल्द 25 सफ़ा 250 पर, और वहीं से हाफिज ने फतहुल बारी में जिक्र किया, और अल्लामा आइनी अलैहिर्रहमान ने भी उम्दतुल कारी में जिक्र किया। तो इन हज़रात का खसूसियत रहमान की भी, रहमान सिफत रहमानियत की वुसअत बयान करने के लिए। लेकिन एक जवाब मैं जिक्र करता हूँ अपने नाकिस फहम से, इनकान सहीउन फमिनल्लाह व इनकान गलतुन फमिन्नी व मिन शैतान, और वो ये है कि रहमान कहते किसे है कि उस मुनइम हकीकी को, उस मुनइम हकीकी को जो नियामत के दर्जे कमाल को पहुँच जाए, कि वो मुनइम हकीकी जो इनाम के दर्जे कमाल को पहुँच जाए, उसको कहते हैं रहमान। और ये माना ऐसा है कि गैरुल्लाह पर सारी जाएगा। देखो कि रहमान उस मुनइम हकीकी को कहते हैं जो एहसान के और नियामत के दर्जे कमाल को पहुँच जाए। तो हकीकी मुनीम तो किसे, जो अपनी जाती नेमत का फैजान करता हो, और जाहिर बात है कि वो अल्लाह ही कर जाएगा। दीगर जो हज़ार एहसान नेमत देते हैं वो वास्ता है, बारी ताला ने उनको दिया वो दे रहे हैं। तो मुनीम हकीकी से कहते हैं जो अपनी जाती नेमतों का फैजान करता हो। मुनीम हकीकी के दर्जे कमाल क्या है कि बदला एहसान करने के बाद बदले का ख़्वाहान। अब बदला एक तो क्या है, जल्द मनफियत और दफ़े मजरत। फिर जल्द मनफियत की जो किस्में आखिरत और दुनिया। तो जल्द मनफियत आखिरत तो क्या है कि सवाब की उम्मीद के ऊपर एहसान करता है कि मैं दुनिया वालों को एहसान इनाम करूँगा तो सवाब मिलेगा। और जल्द मनफियत दुनिया भी तो आप जानते हो कि मेरी तारीफ होगी, मेरे तख्ते पर नाम लिखा जाएगा, ये जल्द मनफियत दुनिया हुई समझी गई। दफ़े मजारत क्या है, जिनसी रिक्कियत को, क्या अपने उन जिन्स को देखकर जो कल्ब में नरमी पैदा होती है उसको क्या है ज़ाहिर करना, या एक माल की मोहब्बत को जाहिर करना। तो ये माना जो है वो अल्लाह ताला ही में पाया जाता है। इंसान जो देता है अपनी जाती नेमत नहीं देता, बल्कि वो वास्ता है, नेमत अल्लाह ताला ने उसको दी तब वो दे रहा है। और दर्जे कमाल नहीं, चूँकि वो बदला का खा होता है, चाहे आखिरत में या दुनिया में, चाहे जल्द मन पर और दफ़े मजर। तो ये रहमान में जो माना है वो सिफत बारी ताला में पाया जाता है, गैरुल्लाह को नहीं पाया जाता। तो दीगर सिफात जो है ना वो तो गैरुल्लाह पर बोली जाती है, लेकिन हुजूर पर क्या बोला गया। तो ये रहमान ऐसी सिफत है कि गैरुल्लाह पर उसको बोला ही नहीं जाएगा,
تو گویا علمیت کا درجہ حاصل کیا. جیسے اللہ غیر پر نہیں بولا جاتا، ایسے رحمان کا لفظ جو ہے اگرچہ اسماء صفت ہی ہے لیکن وہ علم کے درجے میں ہوگا کہ غیر اللہ پر اس کا اطلاق ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے صفت رحمان کو ذکر کیا. اب حبیبتان الرحمان کہ باری تعالیٰ کو یہ کلمے بڑے محبوب ہیں. یا تو کیا ہے، بعضوں نے کہا کہ ان سے کہنے والے بڑا محبوب ہے، کہنے والے کیا ہے محبوب ہیں، لیکن یہ مجازی معنی ہوا ہے. بعضوں نے کہا کہ یہاں انسان کی عادت ہوتی ہے کہ اس کی فطرت یہ ہے کہ اس کی جانب تمام تعریفیں اور اچھی چیزوں کو منسوخ کیا جائے اور غلط چیزوں کو اس سے دور کیا جائے. تو باری تعالیٰ اس کو کیسے نہیں پسند کرے گا، وَلَهُ الْمَثْلُ الْأَعْلَىٰ. اس لیے ایک جواب تو یہ دیا. دوسرا یہ کہنے والا یہ مجازی معنی ہوا، لیکن سب سے بہتر وہ جواب ہے کہ اصل میں خود یہ کلمے ہی نفس ذات سے کیا ہے محبوب کیا ہے باری تعالیٰ کو، اس لیے کہ امام مسلم نے کیا ہے اس روایت کو ذکر کیا ہے کتاب الدعوات میں، احب الکلام الی اللہ سبحان اللہ و بحمدہ. تو نفس یہ کلمہ ہی جو ہے سبحان اللہ والحمدللہ یہی باری تعالیٰ کو کیا ہے زیادہ محبوب ہے، اس لیے کہا کلمتان حبیبتان. اب اس کے بعد اس کی ترتیب میں کیا ہے دو قول ذکر کیے گئے ہیں. جمہور تو یہ کہتے ہیں کہ کلمتان اپنی تینوں صفت کے ساتھ کیا ہے خبر مؤخر مبتدا اور پھر سبحان اللہ و بحمدہ یہ اس کی خبر یعنی اصل کے اوپر اس کو کیا ہے خبر مقدم کر دیا جمہور نے کہ یہ کلمتان موصوف اپنی تینوں صفت کے ساتھ خبر مقدم اور وہ مبتدا مؤخر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ تو جمہور کی رائے تو یہ ہوئی. اور وجہ یہ کہ تقدیم ماحول تاخیر کہ خبر منشا تاخیر کا ہے، لیکن جب اس کو مقدم کیا تو اب کیا ہے لوگوں کو اشتیاق اور شوق پیدا وہ دولت کلمے جو بہت محبوب وہ کیا ہوں گے، جو ہلکے ہیں میزان میں بڑے آتے وہ کیا ہوں گے. پھر کہا اشتیاق پیدا کرنے کے لیے جیسے کہ اہل معنی کہتے ہیں کہ خبر کو مقدم جبھی کیا جاتا ہے جبکہ اس کی جانب شوق دلانا ہوتا ہے. یہ تو جمہور کی رائے ہے، جس کو قسطلانی نے کیا ہے ذکر بھی کر دیا. لیکن حافظ ابن حمام نے جو ذکر کیا کہ اپنی جگہ پر یعنی کلمتان اپنی تینوں صفت کے مل کر مبتدا اور وہ کیا ہے خبر، اس لیے کہ قاعدہ ہے کہ کسی چیز کو اپنی جگہ سے بلا وجہ کے اپنے منہ سے ہٹایا نہیں جائے گا. دوسرا انہوں نے کہا کہ کلمتان میں اپنی ذات کے صفت سے کوئی خوبی نہیں ہے، صفت کی وجہ سے آئی، یعنی اس میں اگر کوئی آئی تصویر کی بات تو صفت کی وجہ سے آئی، جبکہ سبحان اللہ و بحمدہ اس میں ذاتی طور کے اوپر کیا ہے معنی خوبی کا معنی موجود ہے. لہذا جو چیز ذاتی ہو، جیسے تم نے کئی دفعہ میں نے وہ شعر بھی تمہارے سامنے متنبی اور علی میاں نے اس کو مختارات میں بھی لیا، سن لو. حسن الحیات مجلوب بتطریت وفی البداوت حسن غیر مجلوب. تو یہاں خبر میں جو حسنیت ہے سبحان اللہ و بحمدہ ذاتی ہے، اور کلمتان میں جو خوبی آئی وہ ذاتی نے اوصاف کی وجہ سے آئی. تو یہاں جو چیز ذاتی ہو وہ کیا زیادہ قائم ہوتی کہ اس کو اس کی جگہ پر کیا رکھا جائے. اس لیے ابن حمام نے یہی کہا کہ یہ کلمتان مبتدا ہے اور وہ اپنی خبر ہے کیونکہ خبر میں ذاتی طور پر کیا ہے کمالیت اور حسن کے معنی موجود ہے. خیر یہ تو یہ جو ترکیب آپ کے سامنے ہو. اب یہاں جب یہ کہا کہ حبیبتان الرحمان یہ دو کلمے باری تعالیٰ کو کیا زیادہ محبوب ہے، اس کی وجہ سے سوال دماغ میں ہو سکتا ہے کہ جب باری تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے تو کیا ہے اس کا بولنا بھی کیا ہے ثقیل ہوگا، اس کو یاد کرنا بھی کیا ہے. تو کہہ دیا خفیف فضان اللسان کہ زبان میں بڑے ہلکے پھلکے ہیں. ایک تو اس بنا پر کہ کوئی لمبے چوڑے نہیں ہے، مختصر کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. دوسرا یہ کہ یہ عبرانی اور دوسری سوریہ نہیں ہے بلکہ عربی زبان اور عربی زبان سے الگ ہوتی ہے. اس کے علاوہ پھر اس میں اور اعتبار سے یعنی ادائیگی کے اعتبار سے بھی اس میں کیا ہے خفت کا معنی ہے. کیوں
کہ صفات شدت جو ہے جس کا مجموعہ اجید قطن بکر، اجید قطن بکر، ان میں سے 2 ہی دال اور بے ہے، اور اس کے علاوہ کی صفت کے جو 7 کلمات ہے خشک و تنقید، ان میں سے صرف جو ہے اور کوئی کلمات نہیں۔ پھر سے اور شین وہ کیا ہے، طلب ادائیگی میں کیا ہے، باری کہتے ہیں قلنا کے نزدیک، تو وہ بھی اس میں کیا ہے نہیں ہے۔ اور حروف لین جو ہے الف واو یا یہ کیا ہے موجود ہے، تو ادائیگی کے اعتبار سے بھی اس میں ایسے حروف اور کلمات ہیں جو زبان پر کیا ہے سہل ہوتے ہیں۔ پھر یہ فعل اور اسم میں فعل کیا ہے شکیل ہوتا ہے، تو یہاں فعل نے اسم کو ذکر کیا۔ پھر منصرف غیر منصرف کے اعتبار سے غیر منصرف شکیل ہوتا ہے، تو یہاں منصرف کو ذکر کیا۔ تو یہ تمام بحث کستلانی نے کیا ہے ذکر کر لی۔ جلد 10 صفحہ 482-83 میں۔ تو یہ ادائیگی کے اعتبار سے نفس زبان کے اعتبار سے گویا خفیف۔ تو اب پھر سوال پیدا ہوگا کہ جب ایسے ہلکے پھلکے ہیں تو وزن میں بھی کیا ہے ہلکے پھلکے ہوں گے، ثقیلتان فی المیزان، وزن میں بھی کیا ہے ہلکے پھلکے ہوں گے۔ جواب دیا کہ ثقیلتان فی المیزان، کہ اگر جو زبان پر وہ ہلکے پھلکے ہیں لیکن میزان عمل میں بھاری۔ اور اس کی مثال سمجھو، دیکھو پاپڑ جو ہے نا ہلکے پھلکے ہیں، سمجھو کھانے کے اعتبار سے بھی ہلکے پھلکے، لیکن معدے میں جا کر شکل ہو جائے، ہضم جلدی نہیں ہوتی، دیر ہضمہ ہے۔ تو دیکھو پاپڑ اس کی مثال ہے کہ ہلکے پھلکے ہیں، ہاتھ لگنے ٹوٹ جائیں گے لیکن معدے میں بھاری۔ ایسے یہ کلمات اگر جو زبان کے ادائیگی کے اعتبار سے کیا ہلکے پھلکے ہیں لیکن وزن کے اعتبار سے کیا ہے بھاری ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ جو ذکر کیا کہ اول اور آخر میں مناسبت کیا ہے، یہ تو اول میں انہوں نے انما الاعمال بالنیات سے ذکر کیا اور یہاں وزن کو ختم کیا۔ تو گویا اعمال میں جو وزن پیدا ہو نیت سے پیدا ہوگا، جیسے کرمانی نے اس کو ذکر کیا کہ اعمال میں وزن وہ کس سے نیت سے، جیسے نیت ہوگی ایسے اعمال میں وزن ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ اول اور آخر میں کیا ہے مناسبت ہوئی۔ اور مضمون کے اعتبار سے بھی 2 اعتبار سے کہ ولایت وحی سے کیا شروع کیا اور اسی وحی کے اوپر یعنی صفت کلام پر کیا ختم کیا، یا بعضوں نے کہا کہ یہ بیض الوحی کا باب تو کیا ہے ضمن اصل کتاب الایمان ہے، اور ایمان میں 2 طریقے سے بحث ہوتی ہے۔ تو پہلے کتاب الایمان میں مثبت پہلو سے بحث کی، کتاب التوحید میں کیا ہے سلبی پہلو سے گویا بحث کی۔ تو یہ مضمون کے اعتبار سے 2 مناسبتیں ہو گئی۔ اب سند کے اعتبار سے جو ہے 4 مناسبتیں ہیں۔ دیکھو پہلا راوی کون تھا، حمیدی، پہلی روایت پڑھی کہ نہیں حمیدی سے، اور یہاں کیا ہے محمد ابن اسحاق، اسحاق بھی پڑھا جاتا ہے اسحاق بھی پڑھا جاتا ہے، حمزے کا کسرہ اور فتحہ دونوں کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ پہلے راوی میں بھی کیا ہے حمیدی ہے، اور یہاں پر احمد، تو حمیدی کیونکہ مکی ہے تو یہ وحی کی ابتدا گویا مکہ سے، اور یہ احمد ابن اسحاق جو ہے حضرت کے ہیں یمن کے، اور انصار مدینہ بھی یمن سے آئے ہوئے تھے۔ تو وحی کا آغاز مکے سے ہوا، تو وحی سے آغاز کیا حمیدی جو مکی راوی، اور اختتام جو وحی کا وہ کیا ہے مدینہ میں ہوا، تو کچھ راوی تو گویا ذکر کیا، ایک تو یہ ذکر کیا، دوسری یہ کہ پہلے بھی مادہ ہم یہاں بھی کہ میری نیت اول سے آخر تک گویا محمود تھی۔ ان حمد حمیدی کی روایت لائے نا مادہ حمد یعنی اچھی نیت، اور یہاں پہ احمد کا مادہ لائے احمد لائے مادہ حمد۔ تو مصنف یہ اشارہ کر رہا ہے کہ میری نیت کتاب کے اول سے آخر تک کیا ہے نیت بالکل صحیح رہی ہے۔ تو ہم لوگوں کو کیا ہے وہ وصیت کر رہے ہیں کہ پڑھنے والوں سامع اور قاری اور سننے والے اپنے ہر کام میں نیت صحیح رکھو گے تو صحیح ثمرات مرتب ہوں گے، اور اگر نیت فاسد ہوگی تو فاسد ثمرات، جس کو میں وہاں بیان کر چکا تفصیل سے کہ انما الاعمال بالنیات کا تعلق وضو کے شرط ہونے سے قطع نہیں ہے، بلکہ نیت صحیحہ اور نیت فاسدہ کو ثمرات بیان کرتے ہیں، جیسے یہاں کہہ رہا
सही नीयत के ऊपर है तो हमारा वजन होगा, नीयत फासिद है तो वजन नहीं होगा। तो ये गोया जिक्र किया मुनासबत। तीसरी चीज़ ये है कि पहले रावी क्या पहली रिवाज के रावी कौन सा अभी है? अबू हुरैरा, हजरत उमर के पहली रिवाज के रावी हजरत उमर है, और ये यहाँ पर क्या अबू हुरैरा है। पहले रावी की रिवायत वो किससे जिक्र की? हजरत उमर से, और सानी रिवायत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। और दोनों मुहाजिर, तो गोया आपको इशारा कर रहे हैं कि मोमिन को गरीबुल वतन होना चाहिए। ये सौगात मोमिन है, गुर्बत के अजनबियत से गोया हिरासा और परेशान नहीं होना चाहिए। ये गोया जिक्र किया। दूसरा ये कि बुखारी की पहली हदीस ये भी क्या है? सनद के एतबार से गरीब है, और आखिरी हदीस सनद के एतबार से गरीब। तो इससे इशारा किया कि गुर्बत ये तालिब इल्म के लिए हिजरान काफ़ी है, यानी अजनबियत और अपनी मालूम चीज़ को क्या है तर्क करने से क्या है इल्म हासिल होगा, और मालूम चीज़ जो मोबाइल है उसको तर्क नहीं किया तो फिर इल्म क्या है हासिल नहीं हो सकता है। तो ये गोया मुनासबत है, सनद के एतबार से भी क्या है मुसन्निफ ने क्या है जिक्र कर दी। चार मुनासबत है सनद के एतबार से जिक्र किया। अब असल चीज़ क्या है? दुआ है जो मौलाना के इसके बाद होगी, लेकिन थोड़ा मैं कह दूँ जो मुझे फ़ोन पर आया है। हमारे साथी है देवबंद के मौलाना अब्दुल सत्तार रवि जो अभी तक पाकिस्तान में है, वहाँ से तो डायरेक्ट को फ़ोन नहीं कर सकते थे। दूसरे साथी कनाडा में, वो भी देवबंद के पढ़े हुए हमसे आगे थे, मौलाना मोहम्मद रवि। उनको उन्होंने कर लिखा दुआ के लिए कि मोहम्मद को तो बुखारी अभी वक्त आ रहा है, फ़ोन कर दिए, तो उनके लिए भी दुआ करें। बोलिए कनाडा में जो वो भी क्या आँखों से माजूर है, उनके लिए दुआ भी करना। और तीसरे बड़ौदा में कोई मौलवी सिद्दीक है, उनके लड़के मौलवी सतीफ जो कंठाड़ा से फारिग हैं, तो उन्होंने भी मेरे लड़के रशीद को फ़ोन किया, रशीद ने मुझे किया, तो उनको भी कोई हेमरेज की बीमारी है, उनके लिए भी क्या है दुआ करनी है। उसके अलावा भी बहुत से लोगों ने क्या है दुआएं अपनी मकासद के लिए, अपनी बीमारी के लिए जिक्र किया। फ़ोन के ऊपर ज़्यादा याद नहीं, ये अभी थोड़े वक्त पर था इससे याद रहा। तो तमाम के लिए गोया दुआएं करनी है, चूँकि बुखारी के बाद दुआएं कबूल होती है, जिसको एक तो बुस्तानुल मुहद्दिसीन में जिक्र किया, शेख आरिफ ने उसको जिक्र किया बहजतुन नुफूस में, अल्लामा सूयती ने उससे तदरीबुल राय में लिया। इसी तरीके से अंजुल मतवाल में असुलुद्दीन के कौल को भी जिक्र किया, इमादुद्दीन इब्न कसीर ने भी क्या है उसको जिक्र किया, और शाह अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने बुस्तानुल मुहद्दिसीन में। तमाम का हासिल यही है कि दुआएं तमाम मकासद के लिए, तमाम अमराज मुहलिका के इजारे के लिए, कहत साली में बारिश के लिए, और किसी किस्म की परेशानी हो उसको दफा करने के लिए, तमाम मकासद के लिए ख़त्म बुखारी पर दुआएं कबूल होती है। और ख़त्म का एक तरीके ये है जो आपने सपन पढ़ा, और एक ये है कि एक ही मजलिस में क्या है पूरी बुखारी कई लोग मिलकर क्या है ख़त्म कर दे। जैसे ये हमें याद मुजाहिद मिल्लत मौलाना हिब्बुर रहमान अलैहिर्रहमा को जो कैंसर की बीमारी हुई, हम उस वक्त दाबिल में थे फारसिया वर्ल्ड, लेकिन वहाँ पर तमाम असातिज़ा और दौरे तलबा मिलकर बुखारी शरीफ को ख़त्म किया और उनके लिए दुआएं की गई। तो मालूम हुआ कि ख़त्म के दो तरीक़ है, दोनों तरीक़ के ऊपर गोया दुआएं कबूल होती है। तो हज़रत के बयान के बाद एहतिमाम से दुआ की जाएगी। शामिलीन बातम की अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी शरीफ का दर्स ख़त्म हुआ। हज़रत की मुजल्लल मोहब्बत तकरीर दिल अफरोज़ रूह परवर तकरीर हम समाअत फरमा।